Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is chemical property of 17 group element. We have already discussed about the physical property of group 16 element. In case of physical property of group 17 element, in case of physical property of group 17 element, atomicity, melting point, boiling point, okay, color, solubility, color and solubility. Here we will discuss in case of chemical property of 17 group element, oxidation state. You already know that fluorine have highly electronegative element of this periodic table. It is clear that it shows the -1 oxidation state. But in case of HOF, listen carefully, fluorine show -1 oxidation state if it combined with the other element, but it show the +1 oxidation state in case of HOF. If you calculate the oxidation state in case of HOF, then you find the fluorine show the +1 oxidation state. Is that clear? But all the members of this halogen family, all the members of the halogen family show the -1 oxidation state as well as the +1 oxidation state, +3 oxidation state, +5 oxidation state and +7 oxidation state. Except fluorine. Fluorine only show the HOF +1 oxidation state. But if fluorine combine with the other atom of the element, it's only show the -1 oxidation state. Why chlorine, bromine, iodine show the +1 oxidation state, +3 oxidation state, +5 oxidation state and +7 oxidation state? Because due to the presence of d orbital in case of secondary valency. Here we will discuss about the secondary valency regarding to the d orbitals. But only you remember that halogen family show +1 oxidation state, +3, +5 and +7 oxidation state. Chlorine, bromine, iodine show +1 oxidation state with higher electronegative. Which type of element? So that type of element is called fluorine. Chlorine, bromine, iodine show +1 oxidation state with high electronegative such as the fluorine. For example, ClF. In case of ClF, chlorine show +1 oxidation state because a larger differences of electronegativity between chlorine and fluorine. Chlorine have only 3.5 value of electronegativity and fluorine have the 4.0 electronegativity value. BRF. In case of BRF, तो bromine show +1 oxidation state, IF, iodine show the +1 oxidation state, and some compound of oxygen containing. For example, HOCl, HOBr, and HOI. In case of this compound, chlorine show +1 oxidation state, bromine show +1 oxidation state, and iodine show +1 oxidation state. It means it is clear that chlorine, bromine, iodine if combined with the oxygen, so during this compound, chlorine, bromine, iodine show the +1 oxidation state. Is that clear? Now here we will discuss how this halogen family show the -1 oxidation state or +1 oxidation state, +3 oxidation state, +5 oxidation state and +7 oxidation state. So then we write the configurations of this family from the valences. For example, their general configurations means halogen, the general configurations of the valences of halogen family, then we find the NH2 and NP5. Is that clear? It is the general configurations, means distributions of electron into the subcells. So we find the valence cells have electronic configurations NH2 and NP5.
इज दैट क्लियर? अब इसको लेके हम चलते हैं पहले सेल में। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी ऑर्बिटल में, पी में 3 ब्लॉक बनेगा और 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको लिखेंगे ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान दीजिएगा, यह NS है और यह NP ऑर्बिटल है। यस ऑर्बिटल 2px 2py 2pz। अब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को देखते हैं। फ्लोरीन की नहीं, फ्लोरीन में क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं है, फ्लोरीन की बात नहीं करेंगे हम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करेंगे, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सेकेंडरी वैलेंसी मिलती है। क्योंकि क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन करते हैं तो 287 आता है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5, तो 3s के बाद 3p और 3p के बाद क्या आता है 3d आता है। आप बहु प्रिंसिपल के अनुसार थोड़ा सोचिए कि 3s के बाद 3p और 3p के बाद क्या आता है 3d, तो जो 3d होगा वो हमारा क्या बनेगा सेकेंडरी वैलेंसी क्लोरीन के केस में। ब्रोमीन के केस में 4d, 4s2 4p5, तो 4p5 के 4p के बाद क्या आता है 4d आता है। आयोडीन के केस में बैलेंस सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन 5s2 5p5, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या आया 5d आता है। तो हम उस d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो इसमें हिडन है, दिख नहीं रहा है, लेकिन बॉन्ड के बनाने में यह इन्वॉल्व होता है। तो NS और NP की बात कर रहे हैं। अब इसका जो है d ऑर्बिटल देख लीजिए, NS NP एंड ND लिखिए। और d में कितने होते हैं, d ऑर्बिटल में 5 डब्बे को हम बना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और बढ़ा दे रहे हैं इसमें 5 हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, यह हमारा वेकेंट है, ये हमारा क्या है वेकेंट है अभी, क्योंकि एक ग्राउंड स्टेट का हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये स्ट्रक्चर हमारा ग्राउंड स्टेट का है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देखिए, ध्यान लिखे देना है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर भी सकता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यह दे भी सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें भर जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो यह -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट में +1 और -1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। अब इसका जो है एक्साइटेड स्टेट बना रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट में यस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कहाँ पे 1 1 d ऑर्बिटल में एंटर करेगा। तो 1 2 3 4 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 1 2 3 1 2 3 3 डोनेट करेगा, 1 2 3 3 डोनेट करेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम पुनः जो है एक और इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। तो यस में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, लेकिन पी की बात हम करते हैं तो पी हाफ फील्ड हो जाएगा, मतलब हर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और डी ऑर्बिटल में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, मतलब पी वाई से जो पेयर के फॉर्म में यहाँ दिखा रहा था पी वाई, मतलब पी वाई से इसमें एंटर किया, पी एक्स से 1 इलेक्ट्रॉन और जंप कर गया किसमें डी ऑर्बिटल में। अब यहाँ पे देखिए कितना डोनेट कर सकता है 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5। कितना हो जाएगा +5, तो -1 +1 +3 +5। अब यस से भी ये डोनेट कर देगा, यस से भी डोनेट करेगा तो 1, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 2 1 1 1
अब इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 कितना हो गया जी, एक इसमें से जंप कर गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है ना पूरा कि 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +7 हो गया। लेकिन टर्म एंड कंडीशन इसमें अप्लाई हो रहा है। आयोडीन इतना इजीली वह यस ऑर्बिटल को खाली नहीं करेगा बॉन्ड को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करेगा। टी के केस में, आयोडीन के केस में, क्योंकि आयोडीन के जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसमें जो है एफ अब भी आता है, एफ ऑर्बिटल भी आता है, डी तो आता ही आता है, एफ भी आता है, तो यह यस को खाली नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यह +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बनाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी उसकी नहीं बनेगी। केवल क्लोरीन सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी जो बनेगी वो क्लोरीन की बनेगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट इतना लागू नहीं हो रहा है, पुअर मतलब हार्डर सील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा। क्लोरीन के केस में हार्डर सील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा, और आयोडीन के केस में कैसा दिखाएगा, पुअर सील्डिंग इफेक्ट। और जब पुअर सील्डिंग इफेक्ट लागू होता है तो यस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन वो जंप करके इजीली वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, तो यह हो रह गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, दैट्स ऑल।